हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860। देखिए, ये भारतीय दंड संहिता का तीसरा वीडियो है और अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 41, if the offender is sentenced to imprisonment for a term, this is very important line, a term exceeding 1 year, the term of solitary confinement shall not exceed. So this question is directly related to the section 73. Section 73 dealt with solitary confinement, so it is related to the solitary confinement. And whenever any person is convicted of an offence under this code, the court has power to give the rigorous imprisonment. In that time, the court may also give solitary confinement. Such solitary confinement up to 3 months. अप टू 3 मंथ। देखिए, जब कभी न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि करता है और दोष सिद्धि के साथ न्यायालय उसको जो है कठोर कारावास देने के लिए सशक्त है, तो ऐसा न्यायालय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है, यानी एकांत परिरोध भी दे सकता है। और ऐसा एकांत परिरोध जो है वो किसी भी अनुपात में यहाँ दिया जा सकता है, जैसा कि आगे जो है सेक्शन 74 के रूल्स को फॉलो करते हुए दे सकता है। ठीक है, और अधिकतम कितना दे सकता है? तो 3 मंथ अधिकतम दे सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर उसको इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से कम कर दिया गया है, यानी लेस देन 6 मंथ है, यहाँ पे 6 मंथ है, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा ये 1 मंथ का होगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे कि ये 1 मंथ का हो जाएगा। जबकि अगर ऑफेंस जो है वो लेस देन 1 ईयर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इम्प्रिजनमेंट है, इट्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इट शैल बी अप टू 2 मंथ, तो ये 2 मंथ हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर ऑफेंस जो है उसके लिए उसको पनिशमेंट एक्सीड 1 ईयर दिया गया है, 1 ईयर, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम जो है उसको 3 मंथ्स का जो है कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। सो क्लियर है यहाँ पे सेक्शन 73। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, सो क्लियर है आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 3 मंथ्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट of section 34 of Indian Penal Code 1860. So let's discuss this thing. Criminal act done by several person, yes, it is an essential ingredient. There must be 2 person or more. Now option B, the criminal act done in the furtherance of common intention. This is most important ingredient of the section 34. Now option C, pre-arranged plan between the person doing criminal act. Yes, it is also a essential ingredient of section 34. Act done by several person in the furtherance of common intention. Now option D, the act done in furtherance of common object. Yes, this is not an essential ingredient of the section 34. It is the essential ingredient of section 149. So answer of this question is here option D. Now question number 43, which one of the following recognizes the principle of vicarious liability? This is very important. Liability under Indian Penal Code 1860. So under section 34 and section 149, both offense are under vicarious liability. Both sections are come under the vicarious liability, law of vicarious liability. So answer of this question is here option C, both A and P. Now question number 44, the difference between section 34 and section 149 of Indian Penal Code is that, तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस में अंतर पूछा गया है, तो क्या अंतर है देख लेते हैं यहाँ पे। Whereas section 34 there must be at least 5 person, so this is absolutely wrong, there must be at least 2 person. And section 149 require only 2 person, this is also wrong, there is an unlawful assembly and unlawful assembly created by at least 5 person, so there must be 5 person. So this is wrong statement. Now option B, section 149 only a rule of evidence.
So this is wrong here. And whereas section 34 create a specific offense, so this statement is also wrong. देखिए सेक्शन 149 जो वो स्पेसिफिक ऑफेंस, अनलॉफुल असेंबली जो है वो अपने आप में अपराध है, चाहे वहाँ कोई अपराध दूसरा ना घटित भी हुआ हो तब भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में एक अपराध है। जबकि सेक्शन 34 जो है वो एक सपोर्टिव ऑफेंस मतलब सपोर्टिव सेक्शन है, सपोर्टिव रूल है, इसलिए इसको रूल ऑफ एविडेंस कहा जाता है। यानी जब तक किसके साथ में कोई दूसरा अपराध सम्मिलित ना हो ये सजा की कैटेगरी में नहीं आता, यहाँ पे सजा नहीं मिलती, जबकि इसमें सजा मिल जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 149 इज ए स्पेसिफिक ऑफेंस एंड सेक्शन 34 इज ए रूल ऑफ एविडेंस। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन सी, सेक्शन 34 रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट in action, whereas section 149 require mere passive membership, yes this is statement is absolutely correct here of the unlawful assembly। देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेक्शन 34 के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, जबकि 149 में सिर्फ मेंबर यानी आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होना मात्र ही पर्याप्त है। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और यही यहाँ पर क्लियर दोनों सेक्शंस में डिफरेंस भी हो जाता है। सो लास्ट ऑप्शन बोथ बी एंड सी, तो बी यहाँ पे गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following section of the Indian Penal Code 1860 voluntarily, so voluntarily were defined in section 39, so answer of this question is here option A, and the remaining sections are not very relevant in the point of view of our examination, that's why we are not going to discussing here. Now question number 46, the offense is defined under, so offense is defined under section 40, यानी धारा 40 जो है इसमें अपराध की परिभाषा दी गई है, अपराध के बारे में बताया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिमेनिंग 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 41 जो है इसमें भी कुछ खास नहीं, बस यही है कि कभी कोई बाई चांस पूछ ले तो स्पेशल लॉ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी सेक्शन 41 स्पेशल लॉ के लिए ट्रीट करता है। वैसे सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग इससे ऐसी सेक्शन है, बहुत ज़्यादा खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, इलीगल सिग्निफाई, सो इलीगल सिग्निफाई मीन्स एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, ऑप्शन बी एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, option C everything which furnished the ground for civil action। so in this question illegal signify everything which is an offense, हर एक चीज जो अपराध है, everything which is prohibited by जो लॉ द्वारा प्रतिबंधित है, everything which is furnished the ground तैयार करती है, ग्राउंड तैयार करती है फॉर सिविल एक्शन के लिए, वो सब जो है वो इलीगल हैं, जिसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। सो क्लियर है, यहाँ पे सेक्शन 43 में बताया गया है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन ही है जिसको पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन पेनल कोड। सो इंडियन पेनल कोड प्रिस्क्राइब्ड हियर 5 टाइप ऑफ ऑफेंस। देखिए 5 तरह के जो अपराध हैं वो इंडियन पेनल कोड में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम अपराधों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनिशियली तो यहाँ पे 6 अपराध थे, जबकि वो अब 5 हो गए हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे डेथ सेंटेंस, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। सेकंड है यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट जो है फॉर लाइफ। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि रिपील कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे थर्ड रिपील कब हुआ था, 1949 में। अब आप ये भी सोचेंगे कि क्या चीज़ रिपील की गई थी, तो यहाँ देखिए पहले एक अपराध हुआ करता था काला पानी, जिसको जो कैदियों को जो अंडमान निकोबार सेलुलर जेल वहाँ भेज दिया जाता था, निर्वसन, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते थे। यहाँ पे क्या कहते थे इसको, ट्रांसपोर्ट, आगे बढ़ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख देते हैं पोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो इसे काला पानी की सजा भी कहते थे। तो ये हो जाएगा। फोर्थ जो है यहाँ पर ये इम्प्रिजनमेंट है। अब इम्प्रिजनमेंट को भी 2 टाइप से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, तो हम लोग भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो रिगरस हो जाएगा। सो क्लियर है, ये रिगरस मतलब कठोर कारावास, जिसमें जो है कैदी से काम कराया जाता है। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, यानी यहाँ पर सिर्फ कैदी को आराम से रहना है, जेल के अंदर बंद रहना है। ठीक है, पांचवा जो हो जाता है ये हो जाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को जब्तीकरण करने के लिए, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रो लिख दिया, प्रॉपर्टी है। लास्ट जो 6 नंबर का है ये हो जाता है फाइन्स, यानी सिर्फ फाइन देकर ही अपराधी को छोड़ जाता है, ये भी एक सजा है। ठीक है, तो ये 6 रिपील हो गया, तो यहाँ पे टोटल बचे 5। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अंडर सेक्शन 60 ऑफ द IPC इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट
तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी पार्टली रिगरस एंड पार्टली सिंपल। देखिए यहाँ पर सेक्शन 60 जो है वो किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 60 है, ये बात करता है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। यानी जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, पूरा सेंटेंस या उसका कोई भाग जो है वो कठोर कारावास या साधारण कारावास से दे सकता है। तो देखिए, अब पहले में दिया था होली रिगरस, दूसरे में दिया हुआ है होली सिंपल, तीसरे में आप पार्टली रिगरस पार्टली सिंपल दिया है, और चौथा पॉइंट जो है इसमें आइदर ए और बी दे दिया है। अगर यार ऑल ऑफ दिस दिया होता तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते, इसलिए मोस्ट सुटेबल हमको यहाँ पर ऑप्शन सी लग रहा है। सो आंसर यार ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी द टर्म इंजरी मीन एनी हार्म। देखिए, इंजरी शब्द की जो परिभाषा है वो दी गई है सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षति। तो जो क्षति शब्द है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सो इलीगली कॉज टू अ पर्सन, अ बॉडी, माइंड, यहाँ कोमल लगाना छूट गया है, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी किसी को इलीगल तौर से किसी के ऊपर, किसी को शारीरिक क्षति हो रही है, मानसिक क्षति हो रही है, ख्याति में क्षति हो रही है, उसकी रेपुटेशन को ख्याति कहेंगे, और संपत्ति को क्षति हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंजरी शब्द को कवर करती हैं। सो क्लियर यहाँ पे इंजरी कवर्ड यार, इंजरी इलीगली कॉज टू अ पर्सन, अ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, द वर्ड गुड फेथ is defined in the Indian Penal Code means, so good faith defined in section 52 of the Indian Penal Code. So answer of this question is here option B. And section 44 dealt with injury, we just discussed this word injury, and section 51 related to the, it is very important, sometime asked in question various examination, oath, and section 52A related to the harbor, जिसे हम लोग संश्रय कहते हैं यहाँ पे, तो हार्बर। तो इन सब की जो परिभाषा यहाँ दी गई है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है गुड फेथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुड फेथ जो है सेक्शन 54 में डिफाइंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 मीन्स, सो ऑप्शन ए द एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ऑप्शन बी हियर द एक्चुअल बिलीव दैट द एक्ट डन नॉट कंट्रेरी द लॉ, सो इट इज रॉन्ग हियर, an act in fact done honestly, so it is also wrong, act done under the bona fide belief। so clear है यहाँ पे कि good faith जो है वो act done with due care, यानी पूर्ण रूप से जो है देखभाल करके, पूर्ण ध्यान से सचेत होकर, और with attention सजग होकर जो कार्य किए जा रहे हैं वो गुड फेथ में किए जा रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म हार्बर। देखिए, ये जो हार्बर की स्पेलिंग है, ये हार्बर की स्पेलिंग जो दी गई है ये अमेरिकन स्पेलिंग है, जबकि ब्रिटिश की स्पेलिंग जो होती है वो हार्बर की HOBUR। तो ये भी सही है, ये भी सही है आज के समय के लिए। सो डिफाइंड अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 डज नॉट इंक्लूड, तो देखिए क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, तो देखते हैं। सप्लाई अ पर्सन विद शेल्टर, यस इट इंक्लूड। सप्लाई अ पर्सन मीन ऑफ कन्वे, इट इज आल्सो रिलेवेंट टू द वर्ड हार्बर। Option C, assisting a person to evade the apprehension. So this word is very important here, assisting. So it is also included in harbor. Now option D, prior. This is wrong here. Prior to commission of the offence, facilitating the commission thereof. So this statement is wrong here, and it does not include in word harbor. So answer of this question is here option D. Now question number 54. Under section 60 of the Indian Penal Code, in a certain have prescribed under the Indian Penal Code, so section 60 of Indian Penal Code describe can be a partly or partly simple। देखिए इस चीज़ को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो आंसर यहाँ ऑप्शन सी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सो क्लियर है यहाँ पे, यानी ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 से। तो क्लियर यहाँ पे सेक्शन 64 जो जनरल प्रोविजन की बात करता है कि जब कभी सेंटेंस दिया जा रहा है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है साथ में फाइन भी दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन होता है तो इम्प्रिजनमेंट जो दिया गया, जैसे मान लीजिए 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया गया, तो उसके साथ में अगर फाइन दे दिया है और फाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर मैक्सिमम 3 मंथ का जो है इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है इम्प्रिजनमेंट, मगर सेक्शन 64 सिर्फ ये बताता है कि यहाँ इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा,
यहाँ पे कंडीशन नहीं बताई कितना इम्प्रिजमेंट बढ़ाया जाएगा, जबकि 65 जो है उसमें क्लियर कहा गया है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है उस एक्ट के लिए, इलीगल एक्ट के लिए, उसका 1/4 जो है वो ऐड किया जा सकता है टोटल सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, शैल बी एक्सेस टू एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच एन ऑफेंस हैज़ बीन सेंटेंस्ड। सो क्लियर है यहाँ पे, यानी उसमें जो जोड़ दिया जाएगा वो सेंटेंस जो भी उसको दिया गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड। अगर देखिए इस सेक्शन से, इन दोनों सेक्शन से कोई भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, वहाँ पे डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर इंडियन पेनल कोड। सो ऑप्शन ए फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, हमने अभी भी डिस्कस किया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। तो देखिए वहाँ पे क्लियर था, सेक्शन 53 था वो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने 5 प्रकार के ऑफेंसेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, पनिशमेंट जो दिए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी वहाँ पे दिया हुआ था, क्लियर है। रिगरस इंप्रिजनमेंट भी दिया था, इंप्रिजनमेंट के अंदर ही है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, देखिए ये चीज़ नहीं दी गई थी, बाकी डेथ तो सबसे पहला ही था। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर इंडियन पेनल कोड, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। आगे भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, बाय विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन द इंडियन पेनल कोड। सो क्लियर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है सेक्शन 50 जो है 3 में जो है यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया था। साथ ही 54 में 53A में ये क्लियर कट किया गया है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था उसको जो है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और ये चीज़ क्लियर कब की गई है, इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कब किया गया, किस एक्ट के द्वारा किया, तो एक्ट 26 है यहाँ पर 1955। सो 1955 में एक्ट 26 के द्वारा इसको जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है। और ये चीज़ क्लियर कहाँ बताइए, सेक्शन 53A में इसको बताया गया है। 53A का सब सेक्शन 2 में यहाँ पे बिल्कुल क्लियर डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्लियर है यहाँ पे एक्ट 26 ऑफ 1955। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC द डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, देखिए, और किस सेक्शन के द्वारा जो है ये यानी डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट किया गया है, उसको कम किया जाता है विदाउट द कंसेंट, यानी कि जो भी अपराधी है यहाँ पर ऑफेंडर है उसकी सहमति के बिना। तो क्लियर है यहाँ पे, देखिए सेक्शन 54 में ऐसा किया जाता है, यानी डेथ सेंटेंस के लिए सेक्शन 54 है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए सेक्शन जो है वो 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। 55 में क्या है कि यहाँ पे अगर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको कहाँ तक किया था, अधिकतम यहाँ पे 14 वर्ष के लिए जो है इसका सेट किया गया है टाइम, तो 14 वर्ष यहाँ दे दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। वैसा तो लाइफ टिल द डेथ होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन्स। सो यहाँ पर 55 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और सेक्शन 52 जो है वो क्लियर है, यहाँ पर वो गुड फेथ की बात करता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, 53 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे पनिशमेंट की यहाँ पे दिया हुआ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 53 में पनिशमेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 59, द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज अंडर इंडियन पेनल कोड IPC इन। सो क्लियर यहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 55। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर जो है आजीवन कारावास की जो दंडादेश है उसका लघुकरण करने की जो उपबंध है, प्रोविजन है, वो सेक्शन 55 में दिया गया है। और कितना तक किया था, अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया था, 14 ईयर तक इसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। साथ ही कौन देता है, कौन इसको कम कर सकता है, देखिए यहाँ कोर्ट नहीं करता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो करती है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी परिभाषा कहाँ दी है, तो क्लियर है, उसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 55A में दी गई है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन
जो है ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं सेक्शन 52 क्या कहता है। सेक्शन 52 जो है हमने जस्ट डिस्कस किया था कुछ देर पहले, ये गुड फेथ के लिए यहाँ पर इसमें बात की गई है। सेक्शन 53 क्लियर है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात की है, तो पनिशमेंट हो जाएगा जिसमें 6 तरीके के हैं, जिसमें एक हटा दिया गया तो 5 बच गए हैं। सेक्शन 54 अभी हम लोगों ने अभी जस्ट इसको बात डिस्कस किया था, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ यानी कैपिटल पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई थी सेक्शन 54 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, हु में कम्यूट सेंटेंस। तो क्लियर है यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट सेंटेंस, जिसको कहाँ बताया गया, सेक्शन 55A में डिस्कस किया गया है। अब देख लेते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है। देखिए जो जिनका मैटर जो है एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है, तो पहला तो हो जाएगा यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, जिनकी एग्जीक्यूटिव पावर में आ रहा है मैटर। और दूसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, जिनकी एग्जीक्यूटिव पावर में मैटर आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कैपिटल पनिशमेंट से लेके किसी भी तरह के ऑफेंस को यहाँ पर कम्यूट करने की शक्ति इनको दी गई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, अगर जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी जैसे ही इस वीडियो के 250 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तब। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ हम डे टू डे जो पोस्ट डालते हैं उसमें भी आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको किस टॉपिक्स पे जो है अधिक से अधिक पोस्ट चाहिए, तो हम लोग उसको भी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।